اسرائیلی فوج کا ایران کے قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، ایرانی حکام نے شہادت کی تصدیق نہیں کی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ علی لاریجانی کو ختم کر دیا ہے، انہیں گزشتہ رات حملوں میں نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا نے علی لاریجانی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ہاتھ سے لکھا ہوا پیغام جاری کر دیا۔ پیغام ایرانی بحریہ کے شہداء کے نماز جنازہ کے موقع پر جاری کیا گیا۔ پیغام میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ لکھا کہ بحریہ کے بہادر مجاہدین کی شہادت ظالم قوتوں کے خلاف قربانیوں کا حصہ ہے، ان کی یاد ہمیشہ ایرانی قوم کے دل میں زندہ رہے گی۔ یہ شہادتیں برسوں تک ایران کی فوج کی بنیاد کو مضبوط کریں گی۔ اسرائیلی فوج کا کامرانیہ کے علاقے میں پاسداران انقلاب کی بسیج فورس کے سربراہ کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی نے امریکہ کے ساتھ امن کی تجاویز کو مسترد کر دیا۔ سینئر ایرانی عہدیدار کے مطابق مجتبی خامنہئی نے کہا کہ اب یہ وقت امن کا نہیں ہے، امریکہ اور اسرائیل کو شکست دینا ہوگی، امریکہ کو ایران کے نقصانات کا ہرجانہ ادا کرنا ہوگا، اسرائیل اور امریکہ کو پہلے شکست دیں گے اور تاوان وصول کریں گے۔ کشیدگی کم کرنے کی تجاویز 2 سال سے ممالک نے بھیجی تھی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان بھی ڈٹ گئے، ہتھیار نہ ڈالنے کا اعلان، کہا ہم نہ ہتھیار ڈالیں گے نہ ہی دھمکیوں سے ڈریں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ کو ایران جنگ پر بڑا جھٹکا، اہم عہدیدار مستعفی۔ امریکہ کے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے سربراہ جو کین نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ ایران کی جانب سے امریکہ کو فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں تھا، یہ جنگ دراصل اسرائیلی لابی کے دباؤ پر شروع کی گئی، میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ ایران کے خلاف جاری جنگ کی حمایت کروں۔ تہران سمیت ایران کے متعدد علاقے آج بھی اسرائیل اور امریکہ کے نشانے پر۔ اہواز، اصفہان، شیراز میں چند گھنٹوں کے دوران دھماکے سنے گئے۔ تہران میں بجلی گھر اور عراق شہر میں رہائشی عمارتوں پر بمباری، کرج اور شہریاد میں بھی فضائی حملے۔ عرب میڈیا کے مطابق تہران میں اہم عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق عراق شہر حملوں میں 9 مولود بچہ، اس کی 2 سالہ بہن، والدہ اور دادی شہید ہو گئے۔ تہران میں جنگ کے دوران شہید ہونے والوں کی تعداد 1500 سے تجاوز کر گئی، اب تک 30 لاکھ کے قریب افراد بے گھر ہو چکے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے جواب میں ایران کے میزائل حملے، اسرائیل میں کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیلی فوج کی جنوبی کمان اور اسرائیلی اسلحہ کمپنی رفال پر حملے کیے گئے۔ بمباری سے 15 اسرائیلی مارے گئے۔ ایران سے جنگ میں مارے جانے والے امریکیوں کی تعداد 13 تک پہنچ چکی، جبکہ 200 امریکی فوجی زخمی ہیں۔ امریکی سینکوم نے تصدیق کر دی ہے، ایرانی پاسداران انقلاب کی انٹیلیجنس تنظیم نے جاسوسی کے الزام میں 10 غیر ملکی افراد کو گرفتار کر لیا۔ ایران کے خلیجی ممالک میں میزائل اور ڈرون حملے جاری۔ متحدہ عرب امارات پر حملوں میں ایک اور پاکستانی جاں بحق ہو گیا۔ حکام کے مطابق پاکستانی میزائل کے ٹکڑوں کی زد میں آ کر جاں بحق ہوا۔ امارات میں حملوں میں مرنے والوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ ابوظہبی کی شاہ گیس فیلڈ میں ڈرون حملے سے لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ سرگرمیاں معطل۔ فجیرہ کے انڈسٹریل ایریا میں ڈرون حملے کے بعد پیٹرولیم تنصیبات میں آگ لگ گئی۔ فجیرہ کے قریب آئل ٹینکر پر نامعلوم پروجیکٹائل سے حملہ، جہاز کو معمولی نقصان پہنچا، عملہ محفوظ رہا۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون اور راکٹ سے حملہ۔ دوحہ قطر میں زوردار دھماکے۔ قطری وزارت داخلہ کے مطابق ایک میزائل کو فضا میں تباہ کیا۔ سعودی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا کہ حالیہ گھنٹوں میں مشرقی علاقے میں 12 ڈرونز مار گرائے۔ کویتی نیشنل گارڈ کے مطابق بھی ایک ڈرون مار گرانے کی تصدیق ہوئی۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے افغان طالبان رجیم کے نشہ بحالی مرکز کو نشانہ بنانے کے بیان کو جھوٹا اور گمراہ کن قرار دے دیا۔ کہا جس اسپتال کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ دہشت گردی کیمپ سے کہیں کلومیٹر دور اور کثیر المنزلہ عمارت ہے، جبکہ پاکستان نے دہشت گردی کے جس انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا ہے وہ تصاویر میں واضح ہے، جس سے طالبان رجیم کا جھوٹ صاف ظاہر ہے۔ طالبان رجیم کے دعوے کا مقصد عوامی رائے کو گمراہ کرنا ہے۔ وزارت اطلاعات نے یہ سوال بھی کیا کہ منشیات کے نام نہاد بحالی مرکز کو فوجی کیمپ میں ملحق اسلحہ ذخیرہ کرنے کی جگہ کے ساتھ کیوں رکھا گیا؟ پاکستان نے کابل ننگرہار میں دہشت گردی کے معاون ڈھانچے کو نشانہ بنایا، جس میں اسلحہ اور گولہ بارود کے ذخائر شامل تھے۔ یہ اسلحہ بے گناہ پاکستانی شہریوں کے خلاف استعمال ہو رہا تھا۔ ادھر افغان جریدے نے بھی پاک فوج کی جانب سے افغان طالبان کی صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تصدیق کر دی۔ اس سے پہلے ترجمان افغان وزارت داخلہ نے دعویٰ کیا تھا کہ نشہ بحالی مرکز میں 400 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ افغان سرکاری ہینڈل نے منشیات بحالی سینٹر کو نقصان پہنچنے والی پوسٹ ڈیلیٹ کر دی۔ آپریشن غضب للحق کے دوران پاک افواج کے افغانستان میں فضائی حملے۔ پاک فوج نے 16 مارچ کو شب کابل اور ننگرہار میں
4 मकामात पर अफगान तालिबान की फौजी तंजीमात को निशाना बनाया। काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एमुनेशन स्टोरेज तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान के तर्जुमान का ड्रग हॉस्पिटल को निशाना बनाने का बयान मज़ाह का खेज है। वीडियो में फ़ज़ाई हमले के बाद धमाके की वजह से बुलंद होते शोले देखे जा सकते हैं, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि यहाँ बारूद का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था। खैबर सेक्टर से मुल्हिका अफगान तालिबान की फौजी पोस्ट को तबाह कर दिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में अफगान तालिबान की झंडा पोस्ट को भी उड़ा दिया गया। पाक फौज के हाथों हजीमत उठाने के बाद अफगान तालिबान के सिविल आबादी पर हमले। बाजोड़ की तहसील सालारजई में सिविल आबादी पर मार्टर हमला, 4 अफराद शहीद। सरहद पार से गोलाबारी की गई एक मार्टर रिहायशी मकान पर आकर गिरा, 4 भाई मौके पर शहीद हो गए। शनाख्त साजिद, अयाज, रियाज और माज के नामों से हुई। पाक फौज के मकामी कमांडर की मुतासरा खानदान की घर आमद। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। अफगानिस्तान की जानिब से हमले के खिलाफ बाजोड़ के अवाम में गम गुस्से की लहर। मुसल्लह अफवाज अफगान तालिबान के बुज़दिलाना हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का ज़रूरियात के मुताबिक मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद। पेट्रोलियम दरामदाद मज़ीद बेहतर बनाए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास ईंधन की बचत और किफ़ायतशुमारी पर अमल दरामद जारी रखने की हिदायत। किफ़ायतशुमारी मुहिम से मुतालिक इक़दामात का जायज़ा शुरका को ब्रीफिंग में बताया गया। वज़ीर आज़म की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान की पेट्रोलियम दरामदात की सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम मज़ीद मुतहरिक हों। हालात की बेहतरी तक तमाम मुतल्लिका इदारे हंगामी इक़दामात के लिए तैयार रहें। तमाम काबीना अरकान ने रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहें नहीं ली। सरकारी महकमों की तेल कटौती के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। जारी खलीजी तेल बहरान और हुकूमत के किफ़ायतशारी इक़दामात। हुकूमत का 23 मार्च को सादगी से मनाने का फैसला। यौम पाकिस्तान पर होने वाली परेड समेत दीगर तमाम तक़रीबात मुनक़्क़िद नहीं की जाएंगी। 23 मार्च को वक़ार और एहतराम के साथ सादा परचम कुशाई की तक़रीब के ज़रिए बनाया जाएगा। आबदार हुर्मुज़ से ऑयल टैंकर जाना शुरू हो गए। व्हाइट हाउस के मुआशी मुशीर केविन हेस्ट का दावा। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान जंग महीनों में नहीं हफ्तों में ख़त्म हो सकती है। ट्रंप इस मामले को अंजाम तक पहुंचाए बगैर पीछे नहीं हटेंगे। तशवीश है कि एशियाई ममालिक अमरीका को तेल फरोख्त करने वाली बरामदात में कमी कर सकते हैं। ईंधन मार्केट के इस्तेहकाम पर चीन और अमरीका के मकासद एक। पाकिस्तान को तिजारत और ट्रांजिट तिजारत के लिए मुकम्मल सहूलत फराहम करने पर ईरानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। तेहरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का बयान। कहा कि ईरान ने मुश्किल हालात में पाकिस्तान ट्रांजिट तिजारत में भी मुकम्मल सहूलत फराहम की। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ज़मीनी सरहदें मामूल के मुताबिक फ़ाल और तिजारती सरगर्मियाँ जारी हैं। पाकिस्तान भी तेहरान के साथ भरपूर ताउन कर रहा है। आबदार हुर्मुज़ खलबादी में मदद ना देने पर अमरीकी सदर के इत्तेहादियों से शिकवे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कुछ ममालिक ने बहुत मायूस किया है। नेटो की हिफाजत पर हमने अरबों डॉलर खर्च किए, जब हमें ज़रूरत पड़ी तो वो गायब थे। बरतानवी वज़ीर आज़म ने मुझे मायूस किया। जंग जीतने के बाद जंगी जहाज़ भेजने का ऐलान किया। केयर स्टार्मर को बता दिया कि अब आपके जंगी जहाज़ों की ज़रूरत नहीं। सदर ट्रंप ने चीन, जापान, जनूबी कोरिया और दीगर मुल्कों से फिर मदद मांग ली। मज़ीद बोले, कुछ कह नहीं सकता लेकिन जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दरख्वास्त मुस्तरद। बरतानिया और दीगर मुल्कों के बाद यूरोपीय यूनियन का भी ईरान के खिलाफ जंग में शमूलियत से इनकार। सफारतकारी को ही बेहतरीन हल करार दे दिया। वजारत खारजा इजलास के बाद कहा कि यूरोपीय यूनियन आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगी। कशीदगी कम करने के लिए सफारतकारी ही बेहतरीन रास्ता है। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन और जनूबी कोरिया आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए अमरीका की मदद से साफ इनकारी है। तेल की आलमी मंडी में गैर यकीनी के साए कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 2.90% का इजाफा। कीमत $103.10 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी WTI भी 2.82% महंगा है। $96.14 फी बैरल का हो गया। मशरिक़ वस्ता में जंग के साए स्टॉक मार्केट्स पर बरकरार। अमरीकी स्टॉक मार्केट में मामूली कमी। नैस्डैक में 0.24, S&P में 0.21 कमी।
जापान की निकाई इंडेक्स में 0.75, जनूबी कोरियन कोस्पी में 2.94%, हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 0.94% इजाफा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 837 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,51,503 की सतह पर बंद हुई। 14 अरब मालियत के 14 करोड़ हिस्स के सौदे हुए। अक़वाम मुत्तहिदा ईरान पर हमले की बिला इम्तियाज मज़म्मत करे। UN मंशूर के तहत जारहियत करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस को टेलीफोन। कहा कि जिन ममालिक को अमन सलामती से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें ईरान के खिलाफ जारहियत की मज़म्मत करनी चाहिए। आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल को ईरान पर मुसल्लत की गई जंग से अलग नहीं रखा जा सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की ट्रंप के एल्ची स्टीव विटकोफ से राबते की तरदीद। अमरीकी मीडिया की खबरें झूठी करार दे दी। बोले कि मेरा विटकोफ से आखिरी राबता तब हुआ जब ट्रंप ने गैर कानूनी फौजी हमले के जरिए सफारतकारी ख़त्म करने का फैसला किया था। कोई भी दावा सिर्फ तेल के ताजरों और अवाम को गुमराह करने के लिए है। जंग सोशल मीडिया पर नहीं होगी, बेहतर है अमेरिका एपिक फ्यूरी का नाम तब्दील करके एपिक फेयर रख ले। पासदारान इनकलाब का अमेरिकी सदर ट्रंप पर तंज। फौजी तर्जुमान ने कहा कि जिस मुल्क से खर्क पर हमला हुआ उसकी ऑयल तंजीमात पर जवाबी हमला करेंगे। ईरानी फौज जब भी किसी मामले पर वार्निंग देती है तो उस पर अमल भी करती है। जो भी अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने देगा उसे पता होना चाहिए कि उसके तवानाई मराकज़ भी तबाह हो सकते हैं। अमेरिका ने ईरान में ज़मीनी फौज उतारी तो उसे एक और वियतनाम का सामना होगा। जब तक ज़रूरत हो लड़ने के लिए तैयार हैं। फिलहाल सिफारती हल पर तवज्जो नहीं दे रहे। अमेरिकी सदर जरा पढ़ें कि वियतनाम में हुआ क्या था। अमेरिका ने ईरान में स्कूल पर हमला करके आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की। एमनेस्टी इंटरनेशनल की मनाब में स्कूल पर बमबारी की मज़म्मत। कहा कि दिलखराश बात है कि बच्चों से भरे क्लास रूम्स कत्ल गाह बन गए। अगर स्कूल की मालूमात नहीं थी तो ये बड़ी इंटेलिजेंस नाकामी है। तंजीम ने मुतालबा किया कि स्कूल हमले में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कज़ाकिस्तान के सदर से राब्ता। कामयाब आईनी रेफरेंडम पर मुबारकबाद। कहा जबरदस्त टर्न आउट और हिमायत अवामी एतमाद की अक्कास है। वज़ीर-ए-आज़म ने काज़िक सदर की दौरे की दावत कबूल कर लिया। इलाकाई पेशरफ्त और अफगान सूरत हाल पर तबादले ख्याल, मुश्तरका खुशहाली के लिए बातचीत, ताउन और रवाबित को फ़रोग देने की अहमियत पर जोर दिया। तरक्की और खुशहाली के लिए मुश्तरका काविशों का अज़्म दोहराया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का अज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबिता। ताज़ा तरीन इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए ख़ारिजा ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। मालियाती जुराइम में मुलव्विस अनासिर के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। मनी लॉन्ड्रिंग और हुंडी माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन पर इत्तफाक। गैर कानूनी ज़राए से बैरून मुल्क रकूम भिजवाने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया जाएगा। मनी चेंजर्स के जरिए रकूम बैरून ममालिक भिजवाने के अमल को स्ट्रीम लाइन किया जाएगा। रकूम भिजवाने का पूरा मैकेनिज्म को शफाफ और फुल प्रूफ बनाया जाएगा। गैर कानूनी ज़राए से रकूम भिजवाने के तमाम ज़राए की हौसला शिकनी की जाएगी। बड़े मनी लॉन्ड्रर्स पर मजबूत हाथ डाला जाएगा। स्टेट बैंक और FIA का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का भी फैसला कर लिया गया। बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात करा दी गई। मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में 30 मिनट तक जारी रही। बानी PTI की आंख के इलाज और बेहतरी के हवाले से बातचीत। मुलाकात में अदालतों में ज़ेरे समाअत अपीलों के हवाले से भी तबादला ख्याल। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध और सिंध इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी के दरमियान मुआहिदा ई स्टैंपिंग निज़ाम मुतारिफ करवा दिया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने डिजिटल कंपनी की तरक्की के लिए ज़रूरी करार दिया। कहा ई स्टैंपिंग निज़ाम से जाली स्टैम्प पेपर्स का खात्मा होगा। प्रॉपर्टी टैक्स निज़ाम को भी डिजिटाइज किया जाएगा। डोमिसल और PRC सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी होंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कमेटी का इजलास। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कचरे को ईंधन में तब्दील करने के मंसूबे की तजवीज़ मंजूर। वज़ीर आला KP ने कहा कि वेस्ट टू फ्यूल मंसूबा दरामदी कोयले पर इन्हिसार कम करने, ज़र मुबादला के बचत और रोज़गार के मौक़े पैदा करने में मदद देगा। मंसूबे से लैंडफिल साइट पर कचरे का दबाव कम और माहौल बेहतर होगा।
पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी असलहे के खात्मे के लिए CCD को जिम्मेदारी देने का फैसला। गैर कानूनी हथियारों के खिलाफ क्रैकडाउन, CCD को टास्क सौंप दिया गया। ज़राए के मुताबिक पंजाब में गैर कानूनी असलहे के खात्मे के लिए नया कानून तैयार, जल्द पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। मुजवज़ा बिल में गैर कानूनी असलहा रखने वालों को 15 दिन में असलहा जमा कराने की मोहलत देने की तजवीज़ शामिल। मुकर्ररा मुद्दत में असलहा जमा न कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हमारा मुल्क इस वक्त हालत जंग में है। फोर्सेस तालिबान रजीम के खिलाफ लड़ रही हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, CTD की कार्रवाई बहुत बड़ी कामयाबी है। दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं, इनके इरादे कामयाब नहीं होने देंगे। हमारा मुल्क महफूज तरीन है, हमारा दिफा बहुत मजबूत है। इसका क्रेडिट मेरे कायदीन को जाता है। किसी भी मुल्क में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पाकिस्तान को मैली आंख से देखे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, इसीलिए हम सुकून से सोते हैं। भारत के शहर वाराणसी में कश्ती में इफ्तार करने पर 14 नौजवानों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नौजवान दरियाए गंगा में इफ्तार कर रहे थे कि एक बीजेपी यूथ लीडर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसमें इल्ज़ाम था कि कश्ती पर होने वाली इफ्तारी में चिकन बिरयानी खाई गई और बचा हुआ खाना मुबैना तौर पर दरिया में फेंक दिया गया। इससे मजहबी जज्बात मशरू हुए, जिसके बाद सबको गिरफ्तार कर लिया गया। नाक़िदीन सवाल उठा रहे हैं कि क्या जज्बात सिर्फ उसी वक्त मशरू होते हैं कि जब मुसलमान अपनी इबादत करें? ये वाक़या भारत में मजहबी आज़ादी और बढ़ती हुई इंतहा पसंदी पर एक बार फिर बड़ा सवालिया निशान बन गया। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां अपने जोबन पर। बाजारों और मार्केट्स की रौनकें दुबाला, खवातीन दीदा जेब कपड़ों की तलाश में सरगर्दा, मर्द भी कुर्ता शलवार और मैचिंग बास्केट की खरीदारी में मसरूफ। किसी को मनपसंद कपड़ों की तलाश तो कोई मैचिंग जूतों की फिक्र में मुब्तला। बड़ों के साथ बच्चे भी पुरजोश। जूतों के साथ साथ घड़ियों, चश्मों और ज़ेबाइशी अशिया की खरीदारी भी उरूज पर। मलबूसात के साथ मनपसंद ज्वेलरी, मैचिंग दुपट्टे, चूड़ियों और दीगर लवाजमात भी मौजूद। शहरियों का कहना है ईद की खरीदारी चांद रात तक जारी रखें।